In this channel, we provide the in-depth knowledge of different programming languages which differentiate you with others. In our series of Python programming language, today we are going to discuss something known as repetition control instruction. Now, before learning repetition control instruction, let's discuss one example. Now, imagine a situation you want to display 100 times hello on the screen using Python programming. Till date, you are having only one option, that is you have to write print hello 100 times, or you have to write print hello 100 times. No other option is there. Okay, fine. If you want to display 100 times, we will write print hello 100 times. Now imagine a situation you want to display hello 1000 times. So what actually we are doing, we are repeating the same statement again and again. Now in Python we are having something known as repetition control instruction. With the help of repetition control instruction, what we can do, we can execute a statement or a set of statement for n number of times repeatedly. अगर किसी भी एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को आपको बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो वी आर हैविंग समथिंग नोन एज रिपीटेशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इन पाइथन. लेट्स स्टार्ट. इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेडली, इट कैन बी अचीव्ड यूजिंग रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर. तो इन पाइथन वी आर हैविंग टू रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट वन इज while and second one is for. For today class we have planned for while. In next class we will go for loop. Unlike other language, there is no do while loop in the Python. What does it means? There is only two loops in Python, while and for. Do while is not available in Python like in C and C++ or Java. While is used to repeatedly execute instruction as long as the condition is true. Same thing like in C and C++, until or unless the condition will be false, the same statement will be executed repeatedly. Same thing is applicable in Python also. While is used to repeatedly execute. Repeatedly execute मतलब बार बार execute करना, किसको, किसी instructions को, as long as the condition is true. जब तक condition true होगी तब तक वो statements को बार बार execute होगा, और जब तक condition false नहीं होगी वो statement repeatedly execute होते रहेंगे. Now there are two forms of while loop in Python. First one is while condition. Condition can be anything I is less than 10, I is less than 11. According to the requirement of the application, we will write down the condition. While condition colon statement 1, statement 2. You can have n number of statements here, or you can have one statement. जिस भी statements को आपको बार बार execute करना है, that you have to write inside the while loop. Second form is while condition. While is a keyword. Condition maybe I is less than 20, I is less than 100. Depending upon the requirement, we will write the condition. Colon statement 1, statement 2. Now this is new in Python. Else statement 3 or statement 4. Now how else work, that we will see in just few minutes. Else block is optional. Make it very clear in your mind. Else block is optional. If present, अगर आप लिखते हो it is executed when condition fails. It is just working like an if else. If this condition false, while condition, if true, then it will execute statement 1, statement 2, statement 1, statement 2 until or unless this condition false. Once this condition will be false, it will come down to else part and it will execute statement 3 and statement 4. Fine. Now usage of while loop. A while loop can be used in three situations. Ultimately loop का काम क्या है? To execute a statement or a set of statement for n number of times. किसी भी statements हो या set of statements को अगर आपको बार बार execute करना है, तो we can take the help of a while loop. A while loop can be used in three situations. When we use first condition, when we use while loop to repeat a set of statement till a condition is true, it means that when we do not know beforehand how many times the statement to be executed, means program execution होने से पहले हमको नहीं मालूम है कि वो loop कितनी बार चलेगा, तो उस condition में अपन क्या use कर सकते हैं, while loop. When we use while loop,
टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट, टू रिपीट मतलब वो सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना है, टिल अ कंडीशन इज ट्रू, जब तक कब तक एग्जीक्यूट करना है, जब तक कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी. इट मीन्स दैट व्हेन वी डू नॉट नो बिफोर हैंड मीन्स बिफोर द कोडिंग, हाउ मेनी टाइम्स दिस स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल when we are entering one value from the user. If user enter non 5 value, 5 को छोड़ के अगर कोई भी वैल्यू एग्जीक्यूट करता है, एंटर करता है, तब तक ये लूप आपका एग्जीक्यूट होगा. जैसे 5 एंटर करेगा ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा. कैसे? num is equal to int input enter a number. What is input? Input is a function which is used to scan some value from the standard input device that is known as keyboard. It takes the input and return in a form of string, but we have to take in integer, so we are casting that string into int. This is how we can cast a string into integer. Int is a keyword, num is a variable, while is a keyword. While num is not equal to 5, मतलब तब तक आप एग्जीक्यूट करते रहिए. while का मतलब तब तक आप एग्जीक्यूट कीजिए जब तक num की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 5. फाइन. मतलब अगर 1 एंटर करेगा कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 2 एंटर करेगा कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 3 एंटर करेगा कंडीशन ट्रू हो जाएगी. 3 इज नॉट इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू. बट यूजर अगर 5 एंटर कर देगा तो 5 इज नॉट इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स, लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा. तो हम क्या कर रहे हैं? while num is not equal to 5 colon, nothing special about this statement, print num comma num into num. So we are displaying the number entered and the square of that number, num into num. Num equal to, again we are taking the input, num equal to int input enter a statement. This statement will be executed once. Fine. This statement will be executed once, और ये आपका बार बार एग्जीक्यूट होगा जब तक कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं होती. ठीक है. यूजर ने अगर सपोज 2 एंटर किया तो इट विल चेक द कंडीशन, इज 2 इज नॉट इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, प्रिंट नम की वैल्यू 2 कॉमा 2 into 2 4, तो 2 and 4 will be printed. Again it will ask for a input. Again यूजर ने एंटर किया 3 इज नॉट इक्वल टू 5, आउटपुट क्या आएगा 3 into 3 9, 3 और 9. Again it will ask for the input. Now user enter 5 is not equal to 5, condition false. Getting my point? जैसे आपका ये लूप टर्मिनेट होगा कंडीशन आपकी बाहर आ जाएगी. Now let's take a next example. Now second, we can use while loop to repeat a set of statement for finite number of times. Means अगर आपको execute करना है, जैसे अभी अपन ने एग्जांपल लिया था, write a program to print 100 times hello, तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हमको 100 टाइम्स वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है. तो फाइनाइट नंबर पहले से डिसाइडेड है. तो we will initialize a variable and check the condition while that variable is is less than 100. So that condition will be true for 100 times. So it will display hello 100 times. Let's take an example. Count equal to 0 while count is less than 10. Here we are taking 10 instead of 100. You can have 100, 1000, 10,000. While count की वैल्यू क्या है 0 is less than 10, condition true. It will display print count into count की वैल्यू क्या है अभी 0 into 0, it will display 0. This is your increment part. ठीक है. तो किसी भी लूप के ना बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजेशन, सेकेंड वन इज कंडीशन, and third one is increment or decrement. Out of these 3, if we ignore any one of these, our loop will execute with undesired result. तो आपको initialize भी करना है. This is an example of initialization, this is an example of condition, and this is an example of increment or decrement. Here we are doing increment. Nothing special about count equal to 0. Make it very clear in your mind. Nothing special about count is less than 10. You can have count equal to 1, count is less than or equal to 10, then also you will get the same output. Ultimately आपको क्या देखना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं आपको कितनी बार एग्जीक्यूट कराना है. आपको 100 टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है कि 1000 टाइम एग्जीक्यूट कराना है.
जितनी बार एग्जीक्यूट कराने उतनी बार कंडीशन ये वाली क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, और ये क्या होता जाएगा, वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजेशन, सेकंड वन इज कंडीशन, एंड थर्ड वन इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। नाउ इन दिस एग्जांपल, दिस इज योर इनिशियलाइजेशन, दिस इज योर इनिशियलाइजेशन, दिस इज योर कंडीशन, एंड दिस इज योर इंक्रीमेंट। तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0, 0 is less than 10, कंडीशन ट्रू, काउंट इनटू काउंट में द आउटपुट विल बी 0, देन काउंट प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। दिस इज नोन एज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द ऑपरेटर क्लास। काउंट प्लस इक्वल टू 1, तो काउंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, 1, 1 is less than 10, कंडीशन ट्रू, काउंट इनटू काउंट, आउटपुट विल बी 1, काउंट प्लस इक्वल टू 1, काउंट की वैल्यू 2, 2 is less than 10, देन 2 into 2 4, ऐसे आपका डिस्प्ले होता जाएगा। जैसे काउंट की वैल्यू 10 हो गई, इज 10 is less than 10, कंडीशन फॉल्स, एंड द लूप विल बी टर्मिनेटेड। फाइन। तो सेकंड कंडीशन कौन सी है जहां पे अपन वाइल लूप यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज वाइल लूप टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट अ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। नाउ थर्ड वन, third, a while loop can also be used to iterate through a string, a list, a tuple using index value. Now what is string, what is list, what is tuple, that we are going to discuss in future classes. But string, I think some of you know string, what is string. List, you can say it's a kind of array. Tuple is also it's a kind of array. Basically list, स्ट्रिंग ऑलरेडी आपको मालूम है, सी से आप करते आ रहे हो, सी, सी प्लस प्लस जावा के अंदर आपने स्ट्रिंग्स किया, सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर। हालांकि लिस्ट और ट्यूपल भी आपने जावा में किया हुआ है, बट लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, वेयरएज ट्यूपल इज अ कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा टाइप। देयर आर अदर डिफरेंसेस ऑल्सो बिटवीन लिस्ट एंड ट्यूपल दैट वी विल डिस्कस इन फ्यूचर। तो हियर व्हाट वी आर राइटिंग, लिस्ट इक्वल टू हेलो कॉमा हाई कॉमा गुड, एस इज इक्वल टू गॉड, tuple is equal to 10, 20, 30. Fine. I equal to 0 while I is less than length lst. What is len? Len is a function which returns the number of items in the container. List is an example of container. Tuple is also a example of container. तो इसके अंदर कितनी वैल्यू रिटर्न है, 1, 2 and 3। तो ये कितना रिटर्न कर देगा, लेंथ कितना रिटर्न कर देगा आपका 3 रिटर्न करेगा। तो कंडीशन कितनी बार ट्रू होगी, आपकी ट्रू होगी 3 टाइम्स। ठीक है, i इज लेस देन 3, तो 0 के लिए ट्रू होगा, 1 के लिए ट्रू होगा, 2 के लिए ट्रू होगा, 3 के लिए आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, i की वैल्यू कितनी है 0, एस आई की वैल्यू कितनी 0, S0 मतलब g, दिस इज 0, this is 1, this is 2, this is 0, this is 1, this is 2, this is 0, this is 1 and this is 2। S का I मतलब S का 0 मतलब G। देन लिस्ट का I मतलब लिस्ट का 0, तो इट विल डिस्प्ले हेलो, और ट्यूपल का I मतलब 10। I प्लस इक्वल टू 1, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, i की वैल्यू क्या है 1, इट विल डिस्प्ले 0, इट विल डिस्प्ले सॉरी O, इट विल डिस्प्ले हाई हियर 20। नेक्स्ट 2, B, गुड एंड 30, और i की वैल्यू 3 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स एंड बाहर। अगेन दिस इज योर इनिशियलाइजेशन, this is your condition, and this is your increment. These are the 3 main parts of any loop in any language: initialization, condition and increment or decrement. Loop execute until the condition become false. जब तक true रहेगा वो loop आपका चलता रहेगा, और जैसे condition आपकी false होगी loop will be terminated. Fine. Any doubt you can ask me. Now few points to remember. Else block is optional. If present, it is executed when the condition fails, that we have already discussed. Else block with the while loop.
else block is optional. You can write else, you cannot write else. According to the requirement of the application, you have to decide. These are the different tools available in Python. Now where to use, how to use, we are learning. Where to use, it depends upon the requirement of the application. अब कोई भी अगर सपोज जैसे फॉर एग्जांपल हमने लूप्स पढ़ा, ठीक है, अब आपकी एक रिक्वायरमेंट आ गई एप्लीकेशन के अंदर, इस नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को आपको 1000 टाइम एग्जीक्यूट करना है, बार बार, तो आप क्या ढूंढोगे कि पाइथन के अंदर इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है. देन वी विल नो here something known as loop. With the help of loops we can execute a statement or a set of statement for n number of times. तो उसको अचीव करने के लिए we can use loops. ठीक है, तो else block is optional. If present, it is executed when condition fails. If the while loop is terminated abnormally with the help of break. Now what is break? Break is a keyword whenever encountered inside the loop, it takes control to the next statement after the block of the loop. So if the while loop is terminated abnormally using break statement, then the else block is not executed. These two things are very important ना. Make it very clear in your mind कि सबसे पहली बात क्या है कि else आपका ऑप्शनल है, ये क्लियर हो गया. एल्स कब एग्जीक्यूट होगा? जब कंडीशन आपकी फेल हो जाएगी. और अगर वाइल लूप इज टर्मिनेटेड, ठीक है, एक तो कंडीशन ये वाला सिंपल अभी देखते आ रहे हैं, ये कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी तब तक ये एग्जीक्यूट होता जाएगा. जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आपका बाहर आ जाएगा. बट देर इज समथिंग नोन एज ब्रेक, सेम एज इन सी एंड सी प्लस प्लस और जावा. What is break? Break is a keyword when encountered inside a loop, it takes the control to the next statement after the block of this loop. तो loop जहाँ पे terminate होगा next statement पे ले जाएगा. अब यहाँ पे क्या हुआ? break आपका जो loop terminate हुआ वो abnormally हुआ, normal condition से नहीं हुआ. हमने यहाँ पे लिख दिया if I की value equal to 5 आती है, ठीक है, यहाँ कुछ भी कंडीशन है, इस कंडीशन से कोई मतलब नहीं. अगर i की वैल्यू इज इक्वल टू 5 हो जाता है तो वो क्या एनकाउंटर करेगा? ब्रेक. और ब्रेक क्या कर देगा? लूप को टर्मिनेट कर देगा. इस कंडीशन में एल्स ब्लॉक विल नॉट एग्जीक्यूट. अगर एबनॉर्मली टर्मिनेशन हो रहा है तो एल्स पार्ट विल नॉट एग्जीक्यूट. अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो एल्स पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एल्स कब एग्जीक्यूट होगा और कब एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा. ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विथ वाइल एंड फॉर लूप. ठीक है, कंटिन्यूस का भी एग्जांपल अपन देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में. आज अपन एक ब्रेक का एग्जांपल देख लेंगे क्योंकि अपन को एल्स पार्ट पढ़ना है. ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स अ लूप विदाउट एग्जीक्यूटिंग द एल्स ब्लॉक. ये ऑलरेडी इसका काउंटर हो गया. ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट का मतलब एक ही हो गया. ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द लूप विदाउट एग्जीक्यूटिंग द else block. If the while loop is terminated abnormally using break statement, the end blocks is else block is not executed. Fine. Continue statement क्या करता है वो जब अपन कंटिन्यू पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस कर लेंगे. यहाँ अपन एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं else block का. Now this is a small program to check whether the number entered by the user is a prime number or not. Now what is prime number? Prime number, it is divisible by 1 or itself is a prime number. For example 5, 7, these are the example of prime numbers. Again what we are doing, we are inputting the value from the user and casting it into integer and store in num. Why? Because input returns string. I equal to 2, I की वैल्यू अपन ने 2 से इनिशियलाइज कर दिया. अब कंडीशन इसमें अपन क्या लगाएंगे? मीन सपोज अगर आपको 7 चेक करना, यूज़र ने एंटर क्या किया 7. अब 7 प्राइम है कि नहीं, तो इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि 1 से तो डिविजिबल होगा प्लस 7 से भी डिविजिबल होगा. मतलब आपको चेक क्या करना है कि 2 to 6 ये डिविजिबल ना हो. अगर 2 to 6 डिविजिबल नहीं होगा तो 1 और 7 से तो होना ही होना है, तो 7 आपका क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर. सेम थिंग इन द केस ऑफ 5 ऑल्सो और एनी प्राइम नंबर. जैसे 1 और 5 से नहीं होना चाहिए, मतलब 2 से लेके 4 तक अगर ये किसी से भी अगर डिविजिबल नहीं है तो वो आपका क्या है? प्राइम नंबर है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल और लेट्स चेक दी लॉजिक. आई की वैल्यू हमने क्या कर दी 2, क्योंकि 1 से इनिशियलाइज. अब यहाँ 2 से क्यों की? क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन था. वी हैव टू राइट ए प्रोग्राम विच विल चेक वेदर द नंबर एंटर्ड इज ए प्राइम और नॉट. तो प्राइम की जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसी हिसाब से हम लॉजिक लिखेंगे.
while I is less than or equal to num minus 1. मतलब हमने क्या लिखा, I is less than or equal to num minus 1. तो अपन यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं 5 का. नाउ यूजर ने एंटर क्या किया यहाँ पे, सपोज 5. I की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, I की वैल्यू 2 है, ठीक है, और num की वैल्यू कितनी है, 5 है. while I is less than or equal to num minus 1. तो यहाँ num की वैल्यू कितनी है, 5. तो 5 minus 1 कितना हो गया, 4. I की वैल्यू कितनी, 2. इस 2 is less than equal to 4. कंडीशन सेटिस्फाई. अब कंडीशन हमने क्या लिखा, इफ num मॉडुलस I is equal to 0. अगेन वी आर यूजिंग इफ कंडीशन. नाउ num मॉडुलस 1, मॉडुलस क्या करता है, इट विल रिटर्न्स द रिमाइंडर. तो अगर 0 रिमाइंडर बचता है मतलब वो डिविजिबल हो गया. तो हमने क्या लिखा, num मॉडुलस I, num की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5. इस 5 मॉडुलस 1 5 मॉडुलस 2, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1. इज 1 इज इक्वल टू 0. 1 इज इक्वल टू 0. कंडीशन आपकी फॉल्स. तो कहा जाएगा I प्लस इक्वल टू 1. यहाँ I की वैल्यू क्या हो जाएगी 3. 2 की जगह क्या हो जाएगी 3. इज 3 इज लेस देन इक्वल टू 4. तो num की वैल्यू कितनी है 4. 4 मॉडुलस I मतलब 3. तो रिमाइंडर बचा 1. 1 इज इक्वल टू 0. कंडीशन फॉल्स. I की वैल्यू क्या हो जाएगी 4. इज 4 इज लेस देन इक्वल टू 4. कंडीशन ट्रू. इज 4 मॉडुलस 4 मतलब 0 इज इक्वल टू 0. तो क्या आउटपुट आ जाएगा आपका, ये टर्मिनेट हो जाएगा, सॉरी टर्मिनेट होगा. सीधा क्या हो जाएगा आपका ब्रेक, और ब्रेक से सीधा कहाँ आ जाएगा, प्रिंट num is prime. ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट. तो ये जब तक आपको कंडीशन चेक करना है जब तक आपका num I is लेस देन इक्वल टू num माइनस 1 है. और अगर इक्वल टू 0 हो गया मतलब वो डिविजिबल हो गया. तो आपको सिंपल क्या डिस्प्ले करके चलना है, num मतलब कि दैट नंबर 4 इज नॉट अ प्राइम. तो यहाँ तो आपका क्या 5 है. तो कंडीशन पूरी का आपकी हमेशा क्या होगी, फॉल्स होगी. ये कंडीशन फॉल्स होगी जब num की I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4. इज 4 इज लेस देन इक्वल टू 4. कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी ट्रू. देखो 2 में आपका कंडीशन फॉल्स होगी. 3 सॉरी इफ num, अगेन आई एम ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड. I की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सॉरी I की वैल्यू कितनी है, सपोज 5 एंटर किया आपने. तो आपको क्या चेक करना है कि वो 2, 3 और 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए. तो आपका 5 क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए. ठीक है, तो 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा. 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा. 4 से डिविजिबल होगा. अब 4 से डिविजिबल से पहले यहाँ हो जाएगा I की वैल्यू सपोज यहाँ पे 4 है. 4 इज लेस देन इक्वल टू 4. तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4. ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी. और फॉल्स होगी तो सीधा कहाँ आ जाएगा, वो एल्स ब्लॉक में आएगा. और I की num की वैल्यू कितनी है 5. 5 इज अ प्राइम. ठीक है, फिर से एक बार आप समझ लेना प्रोग्राम को. अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी. ओके, इसको अपन प्रोग्राम को रन करके भी देख लेते हैं. सी हियर. ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे रन करता हूँ, रन दी कोड. यहाँ पे एंटर करता हूँ सपोज 4. जैसे मैंने 4 एंटर किया तो 4 इज नॉट ए प्राइम. वाई, बिकॉज 4 इज डिविजिबल बाई 2. फिर से एक बार रन करता हूँ. मैं सपोज यहाँ पे लिखता हूँ 5 एंटर. तो आउटपुट क्या आ गया, 5 इज प्राइम. वाई, बिकॉज 5 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 4 से भी डिविजिबल नहीं है. तो आउटपुट क्या आएगा, 5 इज प्राइम. सेम थिंग एक बार फिर रन करके देखता हूँ. सपोज मैं एंटर करता हूँ 7. तो आउटपुट क्या आएगा, 7 इज प्राइम. वाई, बिकॉज 7 2 3 4 5 6 किसी से भी डिविजिबल नहीं है. तो 7 इज प्राइम. सेम प्रोग्राम हमने यहाँ पे सिर्फ क्या किया, इस विजुअल स्टूडियो में लिखा हुआ है. ठीक है, getting my point. So this is how this loop works and break works. So if we want to execute a statement or a set of statement for n number of times, so we can use something known as loop.
I think today we should stop here, and in next class we will discuss something known as for loop. Thank you.